So on a shuttleless loom, weaving a cloth having a reed width of 225 centimeter, the webbed projectile travels a total distance of 245 centimeter at an average velocity of 27 meters per second. If the period during which it is in motion occupies 0.4 of the loom cycle, then calculate the maximum loom speed in picks per minute and the rate of webbed insertion in meters per minute. If the overall efficiency of the running machine is 90%. First part we have already solved and we got the answer as 265 picks per minute. Yesterday we have solved this and we got the answer 265 picks per minute. Here you can see, right? Now we'll solve the second part. The rate of webbed insertion in meters per minute. What they want? The rate of webbed insertion. How we can able to calculate the rate of webbed insertion? How we can able to calculate the rate of webbed insertion? Can anybody able to answer? You need to calculate it in meters per minute. How to calculate in meters per minute? You should know the concept, because in GATE examination or university examination, you will find such type of questions, logical questions for 2 marks, 1 mark. Particularly in GATE examination, you may find such type of questions for 1 mark, for 2 marks. If you know the logic, you know the concept, whatever is the question, you can able to answer definitely. First of all, you should able to understand what is the rate of webbed insertion. If you know this concept, rate of webbed insertion means what, then you can able to calculate the things. If you don't know what is the rate of webbed insertion, then you are unable to calculate definitely. Some students will mug out the question and they solve the numerical. That is not way to solve the examples, mathematical examples. That is not the way. Mug out is not a way, or we can say that is not a proper practice to solve the mathematical examples. For that you should know the concept, rate of webbed insertion. So here we are talking about rate. Can anybody able to answer what is the concept of rate of webbed insertion? इसके पहले हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे रेट ऑफ वेब्ड इंसर्शन के बारे में, ऑलमोस्ट 4 to 5 वेरियस न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट रेट ऑफ वेब्ड इंसर्शन. हाँ सर, वेब ऑफ इंसर्शन में सर पिक लगेगा सर, क्योंकि वो वेब लेके जाएंगे तो. और रेट का मतलब क्या है? रेट ऑफ वेब्ड इंसर्शन, नाम से ही पता चलता है रेट ऑफ वेब्ड इंसर्शन. वेब्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं फैब्रिक में, क्या रेट से इंसर्ट कर रहे हैं. अब रेट यहाँ पे तो मीटर्स पर मिनट उन्होंने सीधा सीधा बताया कि मीटर्स पर मिनट में निकालो. अब हो क्या सकता है ये मीटर्स पर मिनट, 1 मिनट में कितना मीटर जाता है, सीधी बात है. ये मतलब रेट ऑफ वेब्ड इंसर्शन रहेगा 1 मीटर में कितना मिनट, 1 मिनट में कितना मीटर जाता है, वो हो गया उसका रेट. 1 मिनट में वेब्ड कितना मीटर जाता है, वो उसका हो गया रेट. कहाँ जाता है? ऑब्वियसली पिकिंग करते हैं हम तो फैब्रिक में जाएगा, तो यहाँ पे पिक इंसर्शन का काम आएगा. अब एक पिक इंसर्ट होता है तो एक सपोज एक्स मीटर जाता है. अब पर मिनट ऐसा निकालना है कितना मीटर जाएगा. तो क्या लग सकता है अपने को कि 1 पिक गया, 2 पिक गया, 3 पिक गया, 4 पिक गया इंसर्ट हुआ, 5 पिक इंसर्ट हुआ, 6 पिक इंसर्ट हुआ. इसका मतलब क्या लग रहा है आपको? पिक इंसर्शन चाहिए आपको.
पिक इंसर्शन का रेट चाहिए पहले आपको। अगर वो मिल गया तो एक पिक में कितना लेंथ है ये फाइंड आउट करेंगे तो हमें रेट मिल जाएगा। तो पिक इंसर्शन रेट कहाँ से पता चलता है? पिक इंसर्शन रेट कहाँ से पता चलता है? लूम स्पीड से, लूम साइकिल से, लूम स्पीड से। तो यहाँ पे पिक इंसर्शन रेट कितना है? तो पहले पार्ट में हमने आंसर निकाला है उसका। पिक इंसर्शन रेट है 265 पिक्स पर मिनट। एक मिनट में 265 पिक्स जाते हैं और एक पिक का डिस्टेंस कितना है ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया अपना रेट, रेट ऑफ वेक्टर इंसर्शन। सो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनता है? इसके पहले भी मैंने बताया लेकिन आप बार बार भूल जाते हो। लूम स्पीड, लूम स्पीड इनटू लेंथ ऑफ वन पिक, लेंथ ऑफ वन पिक। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। इस एग्जांपल को कैसे मॉडिफाई करेंगे फिर? लूम स्पीड ठीक है वैसा ही रखो। लूम स्पीड आप लिख सकते हो लूम स्पीड इन पिक्स पर मिनट। लूम स्पीड को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लूम स्पीड इन पिक्स पर मिनट, राइट। यहाँ पे लूम स्पीड कैसा है? पिक्स पर मिनट है। कभी कभी आरपीएम रहेगा तो नहीं ले सकते, ये कॉमन सेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो उसको पहले स्टेटमेंट लिखाना पड़ेगा। 1 आरपीएम इज इक्वल टू 1 revolution of the machine will be equal to 1 loom cycle. So 1 peak we can insert. So loom speed in RPM is nothing but we are inserting that many threads, that many webs in a fabric. तो लिख सकते हैं आप वहाँ पे loom speed in picks per minute, picks per minute, right, into। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ वन पिक दिया है क्या डायरेक्टली? कैसे दिया होगा यहाँ पे? क्वेश्चन को पढ़ो। On a shuttleless loom weaving a cloth having a reed width of 225 centimeter, रीड विड्थ दिया है तो इसको हमें पकड़ना है कि एक्चुअल लेंथ उतना ही जा रहा है उसमें फैब्रिक में, राइट। तो इसको हम मॉडिफाई करके ले लेंगे रीड विड्थ, रीड विड्थ। अब ये आ गया आपका वेब इंसर्शन, लूम स्पीड इनटू रीड विड्थ। बट यहाँ पे उन्होंने वेब इंसर्शन रेट निकालने के लिए बोला है क्योंकि आपका मशीन तो 100% चलता नहीं, कभी कभी रुक जाता है ना। तो इन्होंने इफिशिएंसी दिया है 90%, तो इसको भी पकड़ना पड़ेगा। तो विल कंसिडर इफिशिएंसी क्योंकि 100% मशीन नहीं चल रहा है। तो वेब इंसर्शन रेट अगर इफिशिएंसी के बिना हम निकालेंगे तो वो वेब इंसर्शन रेट बन जाएगा फॉर 100% इफिशिएंसी बन जाएगा। बट उतना मशीन चलता नहीं तो इफिशिएंसी को पकड़ना पड़ेगा। सो फॉर्मूला मॉडिफाइड हो गया ऐसे, वेब रेट ऑफ वेब इंसर्शन इज इक्वल टू लूम स्पीड इन पिक्स पर मिनट इंटू रीड विड्थ इंटू इफिशिएंसी, right? Now what is the loom speed in picks per minute? It is 265, ये हमने निकाला है 265 पिक्स पर मिनट इंटू रीड विड्थ कितना है 225 सेंटीमीटर। इट इज इन सेंटीमीटर, वी नीड इन मीटर, so we'll convert it into the meter. So 2.25 मीटर, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 225 डिवाइडेड बाय 100, सेम ही हो जाएगा वो, ठीक है। सो 2.25 into efficiency is 90%, so you can write 90 by 100 or you can write 0.90. So this is efficiency. देखो इसमें भी लॉजिक आपको, कॉमन सेंस आपको बताना पड़ता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं पता है, ये लिखते हैं ऐसा इफिशिएंसी परसेंटेज और नीचे क्या लेते हैं 0.90। तो रॉन्ग मेथड है प्रेजेंटेशन का ये,
इसका मतलब आपको कंसेप्ट पता ही नहीं है। यहाँ पे लिखा इफिशिएंसी परसेंटेज और यहाँ पे लिखा 0.90, तो ऐसा लिखो फिर 90/100, और अगर ऐसा लिखो तो लिखो 0.90, चलता है। ओके, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो अपना वेब इंसर्शन रेट आएगा। कितना था वेब इंसर्शन रेट? 536.62. 536.62 राउंड फिगर में बन जाएगा ये 537 मीटर्स पर मिनट, So 537 meters per minute is the rate of weft insertion. So in this way we have to solve this example. Now we'll see another example. Okay, write down this example. Okay, so what is the example? If on a water jet loom the consumption of water is proportional to the loom width, how many liters per hour would be consumed on a loom 165 centimeter wide, which is running at 500 picks per minute? If a loom 125 centimeter wide consumes 0.5 ml of water per peak. तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि 125 सेंटीमीटर विड्थ जिस लूम का है, दैट लूम कंज्यूम्स 0.5 milliliter of water, right? So the loom which has the width of 125 centimeter consumes 0.5 ml of water per peak, right? Per peak. And they ask how many liters per hour the 165 centimeter loom will consume, which is running at 500 picks per minute. तो सिंपल है एग्जांपल, 125 सेंटीमीटर विड्थ का लूम 0.5 ml वाटर पर पिक कंज्यूम कर रहा है, तो इस हिसाब से 165 सेंटीमीटर वाइड लूम कितना कंज्यूम करेगा? तो ये प्रोपोर्शनलिटी एग्जांपल है। 125 का लूम 0.5 करता है
तो 165 का कितना, कैलकुलेशन करो और मुझे आंसर बताओ। यहाँ पे पूछा है उन्होंने हाउ मेनी लीटर्स पर आवर, लीटर में निकालना है और पर आवर पूछा है। अब दिमाग लगाओ, प्रोपोर्शनलिटी का एग्जांपल है, मैंने हिंट दे दिया आपको, सॉल्व द एग्जांपल। सॉल्व किया क्या एग्जांपल, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसको, ये प्रोपोर्शनलिटी एग्जांपल है, इतना टाइम लगेगा तो सॉल्व कैसे कर पाओगे आप गेट एग्जामिनेशन। या तो इंटरव्यू को भी पूछते हैं, जो एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है ना, टेक्निकल एप्टीट्यूड, कैसे सॉल्व कर पाओगे वहाँ पे। सिंपल एग्जांपल है, इसमें इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। मैंने पहले आपको बताया 125 लूम विड्थ जिस मशीन का है उसको लगता है 0.5 ml, तो 165 वाले को कितना लगेगा। बस, दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी एग्जांपल, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट द आंसर। बट एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय एक चीज ध्यान में रखना है, दे वांट ए आंसर इन लीटर्स पर आवर, यहाँ पे ml है और ये आवर का क्या करना है देखो। यहाँ पे ml है, वो भी एक पिक के लिए है, तो आवर में तो बहुत पिक जाएंगे, और इस आवर का क्या करना है देखो, चाहिए लीटर।
किसी को आया क्या, सॉल्व किया किसी ने? चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। 39.6। 39 नहीं आता है। 39 कैसे, क्या बताओ तो सही एक बार। वो तो देखते हैं क्या लॉजिक लगा है। सर 16 मिनट्स अगर लेते हैं तो 0.5 इंटू 65 किया, उसके बाद उसका आंसर 82.5 आया, 125, और उसके साथ 60 इंटू किया। 2 बार 60 किया क्या? नो सर, वन टाइम। 60 इंटू 0.5 किया, बराबर। यस सर। और ये बाकी का जैसे वैसे लिया, वो 125 वगैरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो आता है वो किया, ऐसा किया हाँ क्या आपने? हाँ हाँ, यस सर। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, मतलब कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर 165 लूम सेंटीमीटर लूम इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 125 नीचे जाएगा, 0 पॉइंट, सॉरी थोड़ा सा अलग वे से लिखता हूँ मैं, 165 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय, ये 125 नीचे जाएगा, 0.66। तो यहाँ पे क्या किया आपने, इंटू 60। यस सर। बस इतना ही। यस सर। ओके, नहीं ये आवर का सर तो आपने अगर 8 कैलकुलेशन, आवर्स करते हैं। नहीं 8 आवर करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे खाली आवर ही बोला है, तो 60 यस लिया सर। तो ठीक, 60 तो आवर आ रहा है, 60 तो आवर आ रहा है। ये 0.5 ml है, इसका क्या किया, हमें लीटर में चाहिए। सर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि ये ml है, इसको लीटर करना है, ये क्या है 0.5 ml है, तो इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000, तो ये यहाँ पे आ गया डिवाइड बाय 1000। अब ये इतना तो मैथमेटिक्स आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 1000 मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली लिखना चाहिए 0.5 डिवाइड बाय 1000 यहाँ पे लिखना चाहिए, बट ओवरऑल वही है, सेम ही है वो मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो नीचे मैंने 1000 क्यों लिया, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 0.5 ml है, तो इसको मुझे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डिनोमिनेटर में 1000 लिया। ये 60 क्यों लिया, क्योंकि ये पर मिनट चल रहा था, जो भी चल रहा है पर मिनट चल रहा है, तो उसको मुझे आवर में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने ऊपर न्यूमरेटर में 60 लिया। ये तो सॉल्व हो गया, पर आवर पर लीटर ये सॉल्व हो गया, बट एक प्रॉब्लम फिर भी यहाँ पे है। क्या प्रॉब्लम है, ये जो भी उन्होंने वैल्यू दिया है 125 सेंटीमीटर के लिए, ये वैल्यू पर पिक के लिए दिया है उन्होंने, ये वैल्यू पर पिक के लिए दिया है। अब एक आवर में एक पिक ही जाता है क्या, एक आवर में एक ही पिक जाता है क्या, नहीं। नो सर। तो कितना पिक जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने एक वैल्यू यहाँ पे दिया था 500 पिक्स पर मिनट, एक मिनट में 500 पिक जाते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 500 करता हूँ, तो एक मिनट में 500 पिक जाते हैं, तो 60 मिनट में कितने जाएंगे, 500 इंटू 60, ये अपने आप आवर का कैलकुलेशन हो जाएगा, 500 इंटू 60 ये अपने आप आवर का कैलकुलेशन हो जाता है। एक मिनट में 500 पिक जाते हैं, तो 60 मिनट में कितने कितने जाएंगे, 500 इंटू 60 कितने जाएंगे, तो अब भी आपका इक्वेशन परफेक्ट बैठता है। अब आपका आंसर जो भी आएगा वो लीटर्स पर आवर में आ जाएगा, लीटर्स पर आवर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना लीटर आता है, 19.8। कितना आता है, 19.8 19.8 लीटर पर आवर। राइट, so it will be 19.8 liters per hour,
19.8 लीटर्स पर आवर। तो इतना वाटर कंज्यूम करेगा ये 165 सेंटीमीटर वाइड लूम, राइट, विच इज रनिंग एट 500 पिक्स पर मिनट। सो स्टूडेंट्स देखो, ये सारे ऐसे वाले एग्जांपल तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि गलती से भी आप विविंग में पढ़े और वहाँ पे वाटर जेट है तो कैसे निकाल पाओगे आप वाटर कंजम्पशन वगैरह ये सारी चीज़ें। आपको आदेश देना पड़ता है नीचे, जब आप मैनेजर बनोगे तो ये चीज़ें मालूम होना जरूरी है कि कैसे निकालेंगे हम वाटर कंजम्पशन और क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, वो सारी चीज़ें मालूम होना जरूरी है। इसमें ज़्यादा टाइम जाता है अपना प्रैक्टिकली सीखने में। अगर थेरोटिकली आप थोड़ा अच्छा पढ़ोगे तो इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको थोड़ा सा ये कम लगेगा, मेहनत कम लगेगा आगे जाने के लिए, क्योंकि आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें पहले से ही मालूम रहेंगे। सो प्रैक्टिकल थिंग्स पकड़ने में आसानी जाएगा, आपको जल्दी जल्दी आप ग्रास्प करते जाओगे। तो ये फ़र्क रहता है एक्चुअली, ठीक है। सो इस तरीके से इस एग्जांपल को सॉल्व करना है कि इसका आंसर आता है 19.8 लीटर्स पर आवर। ये मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखा हुआ, आप अच्छी तरीके से लिखो, कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर 165 सेंटीमीटर वाइड लूम इज इक्वल टू, आ जाएगा। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड हियर द यूनिट नंबर 5। सो आप घर में इसके प्रैक्टिस करो क्वेश्चन के, आपको जेई बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे, you can practice it. Also you can solve the previous year question papers of university examination, so that you can able to practice it in better way, right? Now without wasting the time, we'll start with the unit number 6. This is our last unit in textile mathematics, right? Till now we have completed 5 units, so I appeal you to practice the examples as much as possible. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको उसमें समझना चालू हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कौन सा भी एग्जाम्पल मग आउट करके सॉल्व करना नहीं है, मग आउट इज नॉट अ वे। हर एक एग्जाम्पल का थीम समझो, हर एक एग्जाम्पल में क्या बताना चाहते थे वो समझो, कैसे निकाला वो समझो, अपने आप आपका पूरा टेक्सटाइल का रिवीजन हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, अगर आपने हर एक क्वेश्चन को लॉजिकली समझ के सॉल्व किया तो इसका मतलब है आपने फिर से एक बार सेकंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया। खाली एक ही सब्जेक्ट में आपका इतना रिवीजन होता है, आधे से ज़्यादा टेक्सटाइल एक ही सब्जेक्ट में समझ में आता है, आधे से ज़्यादा टेक्सटाइल समझ में आता है एक ही सब्जेक्ट। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, टेक्सटाइल मैथमेटिक्स जो भी समझ के पढ़ता है उसको आधे से ज़्यादा टेक्सटाइल समझता है, क्योंकि उसको जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा, सपोज फॉर एग्जांपल वाइंडिंग का क्वेश्चन आ गया, तो वाइंडिंग के बुक्स लेके बैठना पड़ता है, वाइंडिंग के कंसेप्ट फिर से पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, फिर जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। अब मैंने जो क्वेश्चंस पढ़ा है वो तो पढ़ो ही, उसके साथ साथ जेई बुक में हर एक चैप्टर के बाद एक्सरसाइज करके क्वेश्चंस दिए, एक्सरसाइजेस करके क्वेश्चन दिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कैसा है सब्जेक्ट। जो सॉल्व किया है उसको सॉल्व करने में कुछ बड़ी बात नहीं है, जो सॉल्व नहीं किया है उसको समझ के सॉल्व करो, डेफिनेटली यू विल गेट मच मोर नॉलेज ऑफ टेक्सटाइल्स। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ टेक्सटाइल मैथमेटिक्स को आप सीरियसली लो, इस सब्जेक्ट को बहुत आपकी तरक्की होगी तो सीरियसली लोगे तो, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है हर एक एक क्वेश्चन के लिए, एक एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे झगड़ना पड़ता है। देखो आप एक्सरसाइज सॉल्व करके देखो, आपको अपने आप समझ में आएगा। तो ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 6। सो इन यूनिट नंबर 6 we are going to see the examples which is based on fabric structure and weaving mechanisms, right? Okay, we'll start with so basically in this unit number in lecture number 1 we are going to see the examples based on fabric structures,
basically examples which are related to the cover factor, GSM of the fabric, right? We are going to see cream percentage, take-up percentage. So you people are already knowing all these concepts. मैंने खुद ने ही आपको फैब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ाया है, तो वहाँ पे मैंने क्रीम बताया था आपको, क्रीम बताया था, कवर फैक्टर बताया था, जीएसएम ऑफ द फैब्रिक बताया था, और टेस्टिंग में भी आपने पढ़ा होगा जीएसएम क्या होता है, कवर फैक्टर क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो पहला एग्जांपल जो हम लेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन क्रीम परसेंट एंड टेकअप परसेंट. So these are the formulas for cream percent and take-up percent. So cream percent, how we are calculating? Pattern length minus, just hold on, I have one important call, just hold. ओके तो यहाँ पे ओके अरे यहाँ पे क्या है, क्रीम परसेंटेज स्ट्रेटन लेंथ माइनस ओवन लेंथ डिवाइड बाय ओवन लेंथ एक्सप्रेस एज परसेंटेज इज द क्रीम परसेंट, राइट. ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पे है ना, यू कैन सी हियर. स्ट्रेटन लेंथ माइनस ओवन लेंथ डिवाइड बाय ओवन लेंथ. यहाँ पे नोटेशन यूज किया है एल माइनस एस बाई एस, इसको छोड़ दो आप. तो स्ट्रेटन लेंथ माइनस ओवन लेंथ बाय ओवन लेंथ इंटू 100 दैट इज क्रीम परसेंटेज. ये कंसेप्ट आपको भी पता है, ज़्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत है नहीं, राइट. क्रीम परसेंटेज क्यों निकालते हैं वो भी मालूम होना बहुत जरूरी है ना. उसके अंदर भी अपने को जाने का नहीं है, अपने को खाली एग्जाम्पल में इंटरेस्ट है, राइट. क्रीम, फिर भी एक बार मैं नॉर्मल कंसेप्ट बता देता हूँ. क्रीम परसेंट हम निकालते हैं कि क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब भी हम फैब्रिक बनाते हैं, व्हेनेवर वी यूज टू व्यू द फैब्रिक, राइट. सो फॉर व्यूइंग द फैब्रिक वी डू इंटरलेसमेंट, majorly for woven fabrics, we are talking about the woven fabrics, right. So we do the interlacement, and due to the interlacement there will be waviness introduced into the thread, either it is warp thread or web thread, right. And because of this waviness we need an extra length of material in order to achieve a targeted meterage, right. So for example, suppose if you need 1000 meters of fabric, and if you warp 1000 meters of beam, right. So obviously when that beam comes onto the loom, definitely you are not going to take a 1000 meters of fabric. Various factors are there. So one of the factor is cream. Why you are not able to get the 1000 meters of fabric? Because due to the waviness, extra length will get introduced into the fabric, and that extra length will get shortened, right, to achieve the required target of 1000 meters. So we have to consider the cream. So what will be the waviness then? How much is the waviness then? Suppose in for example, if 10% waviness is there, 10% crimp is there in warp direction, so obviously you have to consider that 10% extra. Suppose 1000 meters of material is there, you have to consider 10% of it, right. So you have to warp the 1100 meters of material on the warping, right, so that you can able to achieve the required target of 1000 meters. Other things are also we have to consider, just for example waste percentage वगैरह, but here we are not considering this, we are considering only crimp percentage. So if there is 10% crimp in warp, it means what? You need 10% extra material in warping, so that you can able to get the required meterage of fabric. So that is the concept of crimp percent. Then what is take-up percent? Crimp percent और take-up percent में क्या difference है? What is take-up percent? So here take-up percent is equal to straton length
सेम ही लिखा है क्या यहाँ पे मैंने? L माइनस एस बाई एस इंटू 100, 10% भी वही लिखा है। फॉर्मूला में कुछ तो गड़बड़ है। ओके, स्ट्रेटन लेंथ सॉरी टेकअप परसेंट में क्या आता है? सो टेकअप परसेंट इज इक्वल टू स्ट्रेटन लेंथ माइनस वन लेंथ डिवाइडेड बाय स्ट्रेटन लेंथ इंटू 100। सो स्ट्रेटन लेंथ माइनस वन लेंथ डिवाइड बाय स्ट्रेटन लेंथ, ये आता है। यहाँ पे क्या लिया था हमने? स्ट्रेटन लेंथ माइनस वन लेंथ डिवाइडेड बाय वन लेंथ लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया? स्ट्रेटन लेंथ माइनस वन लेंथ बाय वन लेंथ, ये सॉरी स्ट्रेटन लेंथ। ये टेकअप परसेंटेज क्या बताता है? मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 1000 मीटर का फैब्रिक आपको बनाना है, 1000 मीटर का फैब्रिक आपको बनाना है। आपने सब किया, मशीन पे गए, मशीन पे लगाया मटेरियल और आपको आ गया 900 मीटर, आपको आ गया 900 मीटर। तो ये 100 मीटर गया कहाँ पे? ये गया ड्यू टू टेकअप परसेंट, ड्यू टू टेकअप परसेंट, राइट। तो कभी कभी आपको इंडस्ट्री में ये वर्ड सुनने को मिलेगा, कभी कभी क्रीम परसेंटेज सुनने को मिलेगा, तो इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, राइट। 10% क्रीम का मतलब होता है 10% एक्स्ट्रा ले लो वार, और 10% टेकअप का मतलब होता है कि 10% फैब्रिक कम बनने वाला है, इतना ही फर्क है इसमें। 10% क्रीम का क्या मतलब है कि 10% एक्स्ट्रा लेंथ आपको लेना है टारगेट अचीव करने के लिए, और 10% टेकअप का मतलब क्या है कि 10% कम मटेरियल आने वाला है फैब्रिक में। 1000 का ऑर्डर है, 1000 मीटर का, और हमने 10% टेकअप कंसीडर किया है, तो इसका मतलब है 900 मीटर ही मिलने वाला है। और इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि आपने क्रीम परसेंटेज को कंसीडर नहीं किया है, क्रीम परसेंटेज को कंसीडर नहीं किया है वार्पिंग में, उसका इनडायरेक्ट मतलब वही है। मतलब दोनों में ज़्यादा फर्क है नहीं, बट कभी कभी इंडस्ट्री में ये वर्ड यूज करते हैं, कभी ये वर्ड यूज करते हैं, टेकअप परसेंट, कभी क्रीम परसेंट। तो दोनों का मतलब अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है, ये समझ लो आप। क्रीम परसेंट इज डिफरेंट, टेकअप परसेंट इज डिफरेंट। ओके, नाउ विल सी द एग्जांपल। ये मैंने जानबूझ के आपको कंसेप्ट बताया क्योंकि इसके पहले शायद किसी ने बताया होगा, नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। अदरवाइज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन थ्योरी, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन एग्जांपल्स। ओके, so write down this example. Okay, I hope you have written the example. So what is there in this? A cotton typewriter, a cotton typewriter ribbon cloth is analyzed, and from a tested strip of 20 centimeter, the mean warp thread length is 21.2 centimeter. Determine both the crimp and take up percentage. सिंपल है, एक टाइप ऑफ फैब्रिक है, इसको छोड़ दो, ये रिबन क्या है वगैरह, ये टाइपराइटर रिबन क्लॉथ, दैट इज द एक्चुअली वैरायटी ऑफ क्लॉथ, इसको छोड़ दो। आपको क्या समझना है कि क्लॉथ है, उसको एनालाइज किया है, एंड फ्रॉम अ टेस्टेड स्ट्रिप ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब क्लॉथ कितने सेंटीमीटर का हमने टेस्ट किया है?
20 सेंटीमीटर का, मान के चलो ये 20 सेंटीमीटर है. So we have tested it for 20 centimeter. Okay, we have tested it for 20 centimeter. अब उन्होंने क्या बताया मीन वार्प थ्रेड लेंथ इज 21.2 सेंटीमीटर. तो ये 20 सेंटीमीटर फैब्रिक में से हमने एक थ्रेड को उठाया, इस थ्रेड को उठाया और इसको स्केल के ऊपर मेजर किया. अगर आपको ये प्रोसेस पता है तो ये हिडन थिंग्स आपको समझ में आएंगे, राइट. तो इसको लिया थ्रेड को और स्केल के ऊपर गिना, मेजर किया, राइट. जो भी इसमें वेवीनेस था, क्योंकि ये थ्रेड कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा ये थ्रेड ड्यू टू द इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट, है ना. ड्यू टू द इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट ये थ्रेड ऐसा रहेगा वार्प. तो इसको उठाया हमने और इसको स्ट्रेट किया. स्ट्रेट करने के बाद, स्ट्रेट मतलब बहुत जोर से स्ट्रेट करना नहीं है उसके ऊपर, स्लाइटली फिंगर रोल करना है इसके ऊपर, राइट, ताकि खाली वेवीनेस चला जाए, एक्सटेंशन नहीं आना चाहिए, खाली वेवीनेस जाना चाहिए. तो जब हम गिनते हैं तो वो आता है 21.2 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर था, वन लेंथ था, ये स्ट्रेटन करने के बाद वो 21.2 सेंटीमीटर बन गया. अब दो चीज़ें आपके पास है, एक है वन लेंथ और दूसरा है स्ट्रेटन लेंथ. अब आप कैलकुलेट कर सकते हो क्रीम परसेंट एंड टेकअप परसेंट. कैलकुलेट करके मुझे आंसर जल्दी से बताओ. क्रीम 6% आया सर, टेकअप 5.66%. क्रीम तो परसेंटेज आया 6% एंड टेकअप परसेंटेज आया 5.66%. तो बराबर है. So cream percentage is 6% and take up percentage is 5.66%. तो आंसर सही आया है. तो जिनको आया नहीं उनके लिए मैं बताता हूँ झट से यहाँ पे. सो क्रीम परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, क्रीम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, स्ट्रेटन लेंथ माइनस वन लेंथ डिवाइडेड बाय वन लेंथ एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज. So here straighten length is 21.2 centimeter, one length is 20 centimeter, divided by one length is 20 centimeter. When you do this, you will get the answer of 6%. And 10% we are going to calculate like straighten minus 1 divided by straighten length into 100. When we put the values 21.2 minus 20 divided by 21.2 into 100, you will get the answer of 5.66%. Okay, so in this way we have to solve this example.
now we'll see the example based on mass per unit area. Example based on mass per unit area. I think you just write down this example. This example we will solve in next lecture, or you can make a screenshot of it. You can make a screenshot of it, or you write this. A cotton gingham fabric is woven from 18 tex warp and 21 tex weft. The fabric has 28 ends per centimeter and 25 picks per centimeter, and the warp and weft trim percentage are 2.5 and 9% respectively. Estimate the aerial density. तो GSM निकालना है फैब्रिक का, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. अगर कोई सॉल्व करके ला सकता है तो सॉल्व करके ला भी सकता है कल या नेक्स्ट लेक्चर को, है ना. जो चीज़ें चाहिए वो दिया है यहाँ पे. हमारा कंसेप्ट सबको पता है. जब भी मैं एक आपको हिंट देता हूँ इसको सॉल्व करने की, अगर हो सके तो सॉल्व करके आओ, है ना. अब यहाँ पे फैब्रिक एरियल डेंसिटी निकालना है, मतलब फैब्रिक जीएसएम निकालना है. फैब्रिक जीएसएम निकालना है मतलब वार्प का वेट और वेब का वेट आपको पता होना जरूरी है. तो आपको वार्प का वेट और वेब का वेट निकालना पड़ेगा. तो वो भी कैसे निकालना पड़ेगा, पर स्क्वायर मीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मास पर यूनिट एरिया है तो स्क्वायर मीटर में आपको निकालना पड़ेगा. तो कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मल थिंग है, लेंथ इंटू टेक्स. ये कंसेप्ट को यूज करो, लेंथ इंटू टेक्स. अब लेंथ कैसे निकाल सकते हो, इस केस में अलग तरीके से निकलेगा, उसके ऊपर लॉजिकली थिंक करो. यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए आपको क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, एंड्स पर सेंटीमीटर दिया है लेंथ निकालने के लिए, वार्प का क्रीम दिया है. इन चीज़ों का यूज़ करो और निकाल सकते हो तो निकालो लेंथ. एंड टेक्स ये अपना जनरल फॉर्मूला है, लेंथ एंड टेक्स वेट निकालने का. ठीक है. सो यहाँ पे हम निकालेंगे वेट ऑफ वार्प और निकालेंगे वेट ऑफ वेब, एंड दोनों का एडिशन करेंगे तो जीएसएम आ जाएगा. दिस इज द हिंट फॉर दिस एग्जाम्पल. आप सॉल्व कर सकते हो करो, अदरवाइज टुमारो आई विल explain that or solve that example. Okay, today we'll stop here. Just let me take your attendance.